morning students. Once again welcome to Krishna Sodhi classes, and today we are again with the chapter The Rat Trap written by Selma Lagerlöf in your Flamingo Plus 2. Okay student, this is a story written by Selma, and she is the first woman who got Nobel Prize in Literature. And this story is also not only a very interesting story, but also give you a very impactful lesson also of life, that how a person get diverted from the society and how the love, affection and kindness again move to the lovable society where a man cannot think, live without a society. Okay beta, this is a story and the main character are the rat trap seller. He is the protagonist of this chapter. The whole story moves around over here, and in the next phrase you move to a crofter who is a very old man, and he used to work in his young age at the Ramjur sawmill, and he was very kind-hearted and the owner of iron mill. And when he saw our iron master, the rat trap seller, he just think that he is his old acquaintance. And his daughter Egla Wimmelson, and she is a very kind-hearted girl. Okay, and she is not that beautiful, but she is a beautiful from heart. Okay, these were the main gems of this story. Okay, let's move to the story. This is a story of a rat trap seller. Okay, the rat trap seller, he used to sell the rat trap. आप लोगों ने चूहादानी के बारे में सुना होगा बेटे. ये स्टोरी भी चूहादानी बेचने वाले एक पर्सन की स्टोरी है. ओके, वो जो जितनी भी वो चूहादानी है वो किसी कहीं से परचेज करके नहीं ला रहा बेटा, बल्कि कोई इंडस्ट्रीज है या फिर कोई फार्म्स है, वहां से वो क्या करता है, आयरन की जो स्ट्रिप्स होती है उनको लेके एडजॉइन करके वो एक रैट ट्रैप बनाता है. ठीक है बेटा. यूजुअली क्या होता है बेटा कि उससे वो केवल एक रैट ट्रैप सेलर ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो कई बार बेगिंग भी करता है और कई बार छोटी मोटी पिटी टिफिंग भी, यानी कि चोरियां भी करता है वो. बिकॉज कि उसका जो बिजनेस है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो अपना सारा जो अर्निंग है या अपनी बॉडी और सोल, यानी कि बॉडी और सोल टुगेदर. बॉडी का मतलब इंटरनली आपके अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग. ओके, और अपनी सोल को साथ में रखने के लिए, यानी कि अपनी आत्मा को, जब तक आप खुद बॉडी के अकॉर्डिंग खड़े नहीं हो सकते, यू आर टू हंग्री and you just see that something is kept there which you can eat, so probably you will not see that whether it is legal or honorable, but what you will do, you will just snatch it and have it because your tummy need for the thing was there to fulfill now. So that means his body and soul दोनों को इकट्ठा रखने के लिए what he used to do little bit of thieving, even begging also. Okay, now what happened? बेटा, यूजुअली द सोसाइटी और जो समाज के जो लोग हैं उनका उसके साथ में कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, इतना लविंगनेस, काइंडनेस, अफेक्शन सोसाइटी ने उसे नहीं दिया. तो एक दिन वो जब बैठा बैठा सब सोच रहा था, he just become a philosophical person and what he think that the whole world is a rat trap, कि पूरी दुनिया एक चूहादानी है और हम सब इंसान जितने भी हम ह्यूमंस हैं वो सब, चाहे वो ग्रीडीनेस से हो या फिर हमारी जो डिजायर्स हैं, रिच वांट्स टू बिकम मोर रिच एंड द मिडिल वन वांटेड टू बिकम मोर रिचर देन अदर्स. एंड इस तरीके से बेटा वो कहता है कि जिस तरीके से जो एक रैट होता है उसके लिए जब चूहेदानी में चीज लगाया जाता है, बीफ लगाया जाता है, लेकिन उसी तरीके से ह्यूमन की जो ग्रीडनेस है वो इस वर्ल्ड रूपी ट्रैप के अंदर उसे क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है. और जब वो किसी को इस तरीके से ट्रैप होते देखता है, he just have a pleasure in that, and that is a pleasure period of his life. And what he says that usually Selma wanted to indicate that she has a wicked mind, but that wickedness is also honored by the society because he is never loved and affectionated by the society. Now what happens? One day when he was just saying, he was just moving, he was a vagabond and he was just moving on the road, and काफी देर हो जाती है और रात के समय वो देखता है कि एक ग्रे कॉटेज उसे दिखाई देता है. And when he just knocked at the door of that cottage, a very old man, he just opened the gate. And
and what he asked him that can I stay here for a night. What he honorably says and very lovingly and affectionately he says that yes you can. और वो जो ओल्ड पर्सन जो ओल्ड क्रॉफ्टन है वहाँ पे एंड उसने उसको उस रात पे सपर वर्ड इसके अंदर आपके एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है। सपर का मतलब है कि वो पॉज बनाता है या फिर रात के खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, टोबैको उसे देता है और उसके साथ साथ वो कार्ड्स भी रात को जब तक नींद नहीं आती जब तक वो कार्ड्स भी खेलते हैं। जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो उस जो क्रॉफ्टन है वो उसे रात को बताता है कि पहले वो रामजॉस मिल में अपने यंग एजेस के अंदर वो वहाँ पे वर्क किया करता था क्योंकि वो दैट टाइम ही वाज वेरी एनर्जेटिक बट नाउ अब उसके पास एक काऊ है और उसी का ही मिल्क वगैरह सेल करके वो अपनी अर्निंग को चला रहा है। और वो कहता है कि उसने न केवल वो कहता है कि वो काऊ जो है वो न केवल मेरी बेली फील कर रही है बल्कि मैंने अपने पास में 30 नॉज भी इकट्ठा कर लिया है। और वो उनके अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि वो उसे वहाँ पे ये बताना चाहता है कि मैं केवल वर्ड्स में अपने आप को प्रेज नहीं कर रहा हूँ। वो उस पैनल जो विंडो की तरफ मूव करता है वहाँ पे एक पाउच है और उस पाउच के अंदर उसने 30 नॉट्स रखे हुए हैं और वो विंडो पैन के पास में एक कील है उसके ऊपर उसको पाउच को टांगा हुआ है। वो लेके आता है और उसको दिखाता है और वापस उसे फिर से क्लोज करता है और विंडो पैन के पास में ही उसे रख देता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि उसके पास गाय है उसे सुबह सुबह मिल्क द काऊ उसे दूध निकालना है गाय का तो वो सुबह सुबह निकलता है। तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो सोचता है कि जब इसका ऑर्डर ही उठ गया है तो मुझे बेड पे नहीं रहना चाहिए और दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर जाते हैं। अब क्या होता है बेटा दोनों निकलते इकट्ठा हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद में जो रैट ट्रैप सेलर है वो वापस आता है और विंडो के पास जाता है और विंडो पैन को थोड़ा सा ड्राइव करता है और अंदर से वो जो पाउच जो 30 नॉज के स्टफ जो था उसको निकालता है और 30 नॉज उसमें से निकाल के अपनी पॉकेट में स्टफ कर लेता है। ऑब्वियसली कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट लेके चलता है। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं रोड पे मूव करने लगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जो और जो मे बी शायद सबको पता चल जाएगा कि जो क्रॉफ्टर ओल्ड क्रॉफ्टर है उसके 30 नॉज चोरी हो गए और एक रैट ट्रैप सेलर ने लिए हैं तो वो अपने आप को फॉरेस्ट की तरफ यानी कि फॉरेस्ट के अंदर निकल जाता है कि कहीं वहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है और उसके लिए सेफ पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो अंदर निकल जाता है फॉरेस्ट के अंदर। और ऑब्वियसली दैट वाज वेरी मच डेंस्ड काफ़ी ज़्यादा गहरा फॉरेस्ट है तो वो क्या करता है बेटा जहाँ से स्टार्ट होता है और वो पूरा दिन वही घूमता रहता है और फाइनली दिन जो है वो एकदम अंधेरा होने लग जाता है वो काफ़ी थक जाता है। अब वो जो लाइन जो उसने रैट ट्रैप बेट की बात कर रहा था अब आपने देखा वो बेट क्या बन गए 30 नॉट्स and he is trapped due to greediness. ग्रीड के कारण वो खुद उस ट्रैप के अंदर फंस गया एंड ही रियलाइजेस क्योंकि उसने लोगों को ऐसे ट्रैप होते हुए देखा था कि नोज बिकॉज द फिलॉसफी वाज ऑलरेडी जज्ड बाय हिम और वो कह रहा था कि आज मैं लालच के कारण इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो नीचे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है और when he just knocked his head on the land जैसे वो धरती पे अपना सिर रखता है तो उसे नॉकिंग की आवाज़ आती है जैसे कोई हैमर से कुछ मार रहा है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अपनी पूरी माइंड को कलेक्ट करता है क्योंकि ही इज टू टायर्ड पूरा दिन हो गया उसको घूमते हुए तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और मूव करता है जहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे पहुँचता है तो बेटा बड़ी मुश्किल से मूव करता है कोई एनर्जी नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे एक आयरन मिल के नज़दीक पहुँचता है जिस आयरन मिल का नाम है रामजॉस आयरन मिल। ये वही आयरन मिल है जिसका जिक्र क्रॉफ्टर उससे करता है कि इन हिज यंग एज ही यूज्ड टू वर्क देयर। नो व्हाट हैपेंस बेटा वहाँ पे जो सैल्मा है हमारी जो राइटर है उन्होंने एक नेचर का भी बहुत अच्छा सिनेरियो शो किया है कि बारिश हो रही है और टिन शीट पे बूंदों की आवाज़ आ रही है पास में कैनल है उसमें से पानी चलने की आवाज़ आ रही है और अंदर क्योंकि आपको पता है कि जहाँ का जो सिचुएशन जो सिनेरियो शो किया हुआ है वहाँ पे क्या है कि आयरन स्मेल्टिंग हो रही है ओर्स में से मेटल्स को निकाला जा रहा है तो स्पॉट जो है उसके अंदर पानी के उसके अंदर डाल के वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड आ रहे हैं तो एक तो हो रहा है कि जो आयरन मिल के अंदर जो साउंड्स आ रहे हैं
और एक जो नेचर जो बाहर प्रोड्यूस कर रहा है उसका बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो शो किया हुआ है सेल्मा लॉगरॉफ ने। उसके बाद में क्या होता है बेटा कि ही जस्ट गो देयर, और वहाँ पे एक पर्सन है जो वहाँ पे सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है, तो वो वहाँ पे जाकर उससे पूछता है कि कैन आई जस्ट स्टे ओवर अ नाइट फॉर देयर। तो व्हाट ही सेज कि वो सिंपली ही जस्ट डोंट आंसर हिम, ही जस्ट नॉट हिज हेड। अब वो क्या करता है, फौज के पास में जो है वहाँ जाके अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो अपने आप को पहले तो वो थोड़ा दूर होता है फौज से और फिर धीरे धीरे अपने उसके पास आता है। और क्योंकि उसके जो कपड़े होते हैं बेटे वो गीले होते हैं, तो ऑब्वियस है कि गर्माइश लगने की वजह से उसके कपड़ों में से स्टीम आने लग जाती है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा कि वहाँ पे कौन आता है बेटा, इतने में आता है आयरन मिल की जो ऑनर है, ओके, तो मिस्टर स्मिथ। जब मिस्टर स्मिथ वहाँ आते हैं तो यूजुअली वो अपनी जो आयरन मिल है उसको एक समय रात के टाइम में एक तरीके से जज करने के लिए वो रात के समय आए, और उन्होंने जब देखा तो उसने अपनी जो कैप है उसे फेस के ऊपर किया हुआ था, और उसने जब उसको देखा कि उसके कपड़ों में से भाप आ रही है, तो वो जैसे ही उसको उठाते हैं तो उसको लगता है, मिस्टर स्मिथ को लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसका एक ओल्ड एक्वेंटेंस है जिसका नाम है नाइल्स ऑलिव, बिकॉज ही वॉज इन आर्मी। तो वो सोचते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और शायद उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा बुरा समय रहा होगा कि उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है। तो वो अपने जो अपने फ्रेंड को लेके जो अपने व्यूज़ थे और जो विचार थे उसको वो रोक नहीं पाते, और वो उसे फोर्स करते हैं कि क्रिसमस ईव आने वाली है, हम इकट्ठा क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए वो बार बार उसे कहते हैं, लेकिन वो उसे वहां जाने के लिए रैट ट्रैप सेलर तैयार नहीं है, बिकॉज ही थिंक्स दैट कि शेर के den में जाने जैसा काम है, ओके, क्योंकि ही जस्ट कम टू नो द हाफ स्टोरी ऑफ दैट। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, अब क्या होता है, he just don't wanted to move to the den, so what he says, वो बार बार उसके हाँ मना करता रहता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तो उसे लगता है कि मुझसे बेटर मेरी जो बेटी है वो ज़्यादा अच्छा कन्फ्यूज कर पाती है। सो व्हाट शी सेज कि वो अपनी बेटी को भेजता है, और इस तरीके से हम अपने फोर्थ कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एल्डर विमल्सन, एंड शी इज द मोस्ट एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर स्मिथ। एंड जब मिस्टर स्मिथ जो है वो बताते हैं कि उसकी वाइफ है वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके जो 3 बच्चे हैं वो ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, और जो एग्ला है विमल्सन है वही उसके पास में रहती है, तो इतना कुछ घर में कोई इतना नहीं है, तो हम लोग क्रिसमस ईव को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब एग्ला आती है, वो अपने साथ में एक वैगन लेके आई हुई है, वो एक फर कोट है, उसके साथ सर्वेंट है। जैसे ही वो उसको देखती है और उसकी कैप जो उसने अपने फेस को कवर की हुई थी लाइट से बचने के लिए, वो जैसे ही उतारती है, शी जस्ट शॉक कि हाउ दैट कैन बी अ कैप्टन, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भी ऐसा फील नहीं आ रहा था। सो व्हाट हैपेंस, लेकिन वो अपने फादर से कह के आई थी और वो कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, कौन, रैट ट्रैप सेलर। नाउ व्हाट हैपेंस कि वो उसके साथ में उसके घर चली जाती है। जब सुबह मॉर्निंग, क्योंकि रात को तो जाके वो सो जाता है, सुबह मॉर्निंग में उसके जो सर्वेंट्स हैं वो उसकी शेव कर देते हैं और अच्छे से उसे नहला धुला के बहुत ही नीट एंड टाइडी, क्योंकि वो बहुत ही उनके जो कपड़े थे वो पूरे रैग फटे हुए थे, पुराने थे, उन सबको निकाल दिया गया और उसकी जगह एक अच्छा कोट पैंट उसने कैरी किया। और जैसे ही वो निकल के बाहर आया, डाइनिंग टेबल के पास मिस्टर स्मिथ बैठे हुए थे, और जैसे मिस्टर स्मिथ उसको देखते हैं तो वो जस्ट कम टू नो दैट ही इज नॉट द पर्सन whom I used to think that he was my old acquaintance, and what he says to his servant, just throw him out of the house or otherwise I will call the police. No, Edla Wimelson, she just takes her step and she says that he was not willing to come our house. We are still invited him for the Christmas Eve. So what happens? What the rag trap seller says that he will just carry out his own old rag cloths and he just wanted to move away from there. But Edla Wimelson, she requested his father to just let him celebrate the Christmas Eve as they had invited him to their house. Now what happens? His father just accept the view of her daughter and पूरा दिन जो हमारे जो रैट ट्रैप सेलर हैं उन्होंने क्या किया, सिर्फ खाए और सोए। He just have his meal and he just slept, कभी सोफे पे कभी बेड पे, और वो सारा टाइम खाना और सोना।
उसके बाद में इवनिंग होता है। इवनिंग होते बेटा जो क्रिसमस ट्री है उसे पूरा लाइटेंड किया जाता है और उसे गिफ्ट भी दिया जाता है। और अपना अच्छे से क्रिसमस फीस्ट लेने के बाद में अच्छे से अपना फुली वो ड्रेस तो है और एल्डर विल्सन को वो थैंक बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस वाज द सूट हिज फादर वांटेड टू गिफ्ट हिम एज अ क्रिसमस गिफ्ट। एंड उसके बाद में वो फिर जाके सुबह सो जाते हैं, रात के समय खाना खाने के बाद में सो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है बेटा कि एक ट्रेंड है, उसके अंदर क्या होता है बेटा कि क्रिसमस ईव के नेक्स्ट डे सब लोग चर्च में जाते हैं वहाँ पे सर्व करने के लिए। ओके, जैसे वो चर्च में जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो वहाँ पे एक क्रॉफ्टर है, ओल्ड क्रॉफ्टर है, उसके 30 नॉट्स एक रैट ट्रैप सेलर ने चोरी कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही पता चलता है तो हमारे जो ऑनर है आयरन मिल के मिस्टर स्मिथ, वो अपनी बेटी को सुनाना शुरू कर देते हैं कि यू ओनली टोल्ड मी दैट इज अ काइंड, वी मस्ट अटेंड हिम, जस्ट सेलिब्रेट, वी मस्ट सेलिब्रेट द क्रिसमस ईव विद हिम। अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारी चांदी की कितनी कटोरियाँ, चम्मच वगैरह चोरी हो चुकी होंगी। और इसके बाद में क्या होता है बेटा कि वो फटाफट अपनी वैगन लेते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गेट पे एंटर करते हैं और वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि कहाँ है वो रैट ट्रैप पर जो हमारे घर के जो गेस्ट है, तो वो कहते हैं कि वो तो चले गए हैं। तो वो बोलते हैं अपने साथ क्या क्या लेके गए हैं? तो वो कहता है कि वो कुछ लेके नहीं गए बल्कि वो कुछ एक गिफ्ट लेके गए हैं, इसके लिए एग्ला विल्सन के लिए। और एग्ला भाग के जाती है, जब उस गिफ्ट को ओपन करती है व्हाट शी सेज कि वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा रैट ट्रैप, ठीक है, एक गिफ्ट के रूप में उसने दिया है। और उसके अंदर एक पाउच है और उसके अंदर 30 नॉट्स हैं। और उसके साथ साथ उसने एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने एग्ला विल्सन के कैरेक्टर को इनहेंस किया हुआ है कि शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड वुमन। और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप से बच पाया हूँ, क्योंकि अगर तुम ना होती तो शायद मैं और ग्रीडीनेस में या फिर और कुछ इलीगल कर जाता। ही जस्ट हार्टली थैंकफुल एंड इन नीचे वो क्या लिखता है, कैप्टन एल्सन। ओके, नो व्हाट हैपेंस, इस तरीके से जो एग्ला है शी हरसेल्फ फील्स प्राउड ऑफ हर डिसीजन फॉर कीपिंग हिम एट हिज हाउस फॉर द क्रिसमस ईव। Now let's come to the conclusion of the chapter, the rat trap. Okay, in this chapter beta we say that कि इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो सिचुएशंस होती हैं या फिर हम कहते हैं ना इंसान गलत नहीं होता, वो जो काम करता है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे जो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका लव, अफेक्शन, अगर कोई काइंड पर्सन अगर उसे मोल्ड करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज टेम्परेरी। ओके, एंड द सिंपैथी व्हिच एग्ला शो हर, द काइंडनेस and the love which can turn over anyone's life. Thank you very much. Have a nice day.